Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. In the last lecture, we have completed exercise 3.4 up to question number 1, and also we have learned about the common factors and common multiple of given numbers. So now we are resuming the question number 2 of exercise 3.4. What is the question? The question is find a common factor of 4, 8 and 12. Okay. So first we find the common factor of 4. First we factor of 4. 1, 2 and 4. Okay. Factor of 4, 1, 2 and 4. Now factor of 8. What is the factor of 8? 1, 2, 4 and 8. Okay. 8 है वो 1 के टेबल में आएगा, 2 का टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा और 8 के खुद के टेबल में आएगा. Then factor of 12. Factor of 12 1, 2, 3, 4, 6 and 12 है ना. 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 2 6 जा 12, 3 के टेबल में आएगा, 3 4 जा 12, 4 के टेबल में आएगा, 4 3 जा 12, 6 के टेबल में 6 2 जा 12 and 12 1 जा 12. Then what is the common factor? So common factor is first 1, 2 and 4. The three all numbers are common in the three numbers. So we can say that common factor are 1, 2 and 4. Okay. Now second question is 5, 15 and 25. So factors of 5, 1 and 5, because of 5 is the prime number. Okay. Then factor of 15, 1, 3, 5 and 15, क्योंकि 15 3 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है. ठीक है. 3 5 15 और 1 और 15 तो मिलेंगे ही मिलेंगे. देन फैक्टर ऑफ 25 इज इक्वल टू 1, 5 एंड 25, क्योंकि 1 के टेबल में 25 आएगा, 5 5 जा 25, इसके अलावा कोई भी टेबल में 25 नहीं आता और 25 खुद में. तो 1 1 1 5 5 5 is the common factor. So we can say that common factor are 1 and 5. Okay. Write down in your book. Now the question number 3 is find the first 3 common multiples. फर्स्ट 3 मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं तो हमें सभी मिलेंगे. फैक्टर्स हमें सभी मिलेंगे क्योंकि वो फाइनाइट होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं जो नंबर्स होते हैं ना फैक्टर्स के. पर जो मल्टीपल्स होते हैं वो मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, मतलब वो गिने नहीं जा सकते उतने होते हैं. सभी नंबर्स के वैसे ही मिलते हैं इनफाइनाइट, जो हम काउंट नहीं कर सकते. इसीलिए जब भी हमें कॉमन मल्टीपल फाइंड करना होगा तब स्पेसिफाइड किया होगा कि फर्स्ट 3, फर्स्ट 2, फर्स्ट 5, whatever. Okay. So in the question number 3 is find the first 3 common multiple of 6 and 8. 6 and 8 इन दोनों के फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड करने हैं. तो फर्स्ट वन इज द मल्टीपल ऑफ 6. मल्टीपल ऑफ 6. 6
12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Okay, these all are the multiple of 6. Now multiple of 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Okay, so now you can see here, starting with the first term, yes, 24. 24 is the first common multiple. The second one is 48 और थर्ड वन अभी हमें मिला नहीं, तो हमें आगे बढ़ना होगा. लाइक 56, then 74, sorry 72, then 72 after 80, then 88, 96. Okay, and here 60, then 66, 66, then 72, 72, then 78. These all are the multiple of 6. Now we get the common multiple of third number, 72. These all three are the first three common multiple. Okay, so we can say that first three common multiples of 6 and 8 are 24, 48 and 72. Now in the second question is 12 and 18. 12 and 18. So here first multiple of 12. Multiple of 12 is equal to these all are the multiple of 12. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 and 120. Now multiple of 18. So here multiple of 18 is 18, 36, 54, 72, 90, 108 and 126. These all are the multiple of 18. Now you can see here, what is the first multiple? 36, then 72, then 108. So we can say that common multiple of common multiple of 12 and 18 are 36, 72 and 108. Okay, write down in your book. Now question number 4. What is the question number 4? Question number 4 is write all the numbers less than 100 which are common multiple of 3 and 4. जो अगला एग्जाम्पल किया वैसा ही एग्जाम्पल है. पहले तो हमें मल्टीपल फाइंड करना पड़ेगा. मल्टीपल
of 3, multiple of 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27, 30, now 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 and 99. These all are the multiple of 3 up to 100. ये तो सिर्फ 100 तक के ही मल्टीपल है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मल्टीपल हम इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। पूरा बोर्ड भर जाए, उसको इरेज करके दूसरा बोर्ड भरूँ तो भी 3 के मल्टीपल ख़त्म नहीं हो गए। उसी तरह मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 कहाँ तक? 100 तक। लेट्स स्टार्ट। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 and 100. Okay, these all are the multiple of 4 up to 100. यहाँ पे 100 नहीं आ रहा, 99 आ रहा है। इसके बाद का नंबर होगा तो 102 हो जाएगा। तो 102 इज द ग्रेटर देन 100। तो मैंने 100 तक की वैल्यू ली है। अब हमें लिखना क्या है? कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4। कॉमन multiples of 3 and 4. Let's start with the 3, 4, 8, 6, 9, 12. Okay, yes, 12, 12. The first multiple is 12. Okay, 12 के बाद 50, 60, 80, 20, yes, 24. It's a 24. Now let's see 12, 24. अब आपको थर्ड वन ऐसे ही मालूम पड़ जाएगा बिना देखे। 12 के बाद 24 आया तो अब 36 आएगा, बाद में 48 आएगा, है ना, बाद में 60 आएगा, बाद में 72 आएगा, बाद में 84 आएगा, बाद में 96 आएगा। देख लो, मतलब यहाँ पे 3 और 4 का जो कॉमन मल्टीपल हो तो पहला क्या मिलेगा? 12। तो बाद में 12 का टेबल ही हमें काउंट करना है, उसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। देखो 36, यहाँ पे 36, बीच में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं मिलेगा। देन 48, 48, देन 60, 60। यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रही है, आप जरा गौर से देखोगे तो कि यहाँ पे दो फैक्टर्स के बीच में, दो कॉमन मल्टीपल के बीच में 3 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है। देखो 2 के बाद कॉमन, 2 के बाद, 2 के बाद, यहाँ पे 2 के बाद, यहाँ पे भी 2 के बाद, यहाँ पे भी 2 के बाद, आफ्टर द 2 नंबर्स, यहाँ पे 3 नंबर्स। देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। They all are the common multiple up to 100. Okay, write down. Now question number 5 is which of the following numbers are co-prime, है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने सिखा दिया co-prime नंबर्स क्या है। कोई भी दो फैक्टर्स, कोई भी दो नंबर्स का 1 के अलावा एक्सेप्टिंग 1 के अलावा कोई और दूसरा कॉमन फैक्टर अगर न मिलता हो तो वो दो नंबर को हम को-प्राइम नंबर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल 2 and 3, है ना। तो 2 and 3 में, 2 और 3 में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही रहेगा, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, इसलिए दोनों नंबर को-प्राइम नंबर्स है। इस तरह से हमें चेक करना है। नंबर 1,
18 and 35. Okay, second one is, पहले एक तो कर लेते चलो. Here factor of 18 is equal to 1, 2, 3, 6, 9 and 18. These all are the factor of 18. And factor of 35, 1, 5, 7 and 35. Here only 1 is the common factor. So both numbers are co-prime numbers. Here only 1 is common factor. So 18 and 35 is co-prime number. Second one is B, 15 and 37. 15 and 37. Factor of 15 is equal to 1, 3, 5 and 15. And factor of 37 is equal to 1 and 37, because of 37 is the prime numbers. So here only 1 is common factor of between that number. So 15 and 37 is co-prime numbers. Okay, इसके अलावा नेक्स्ट C, 30 and 415. C, 30 and 415. तो यहाँ पे देखो 30 में भी कॉमन फैक्टर 5 मिलेगा और 115 में भी कॉमन फैक्टर 5 मिलेगा. तो पूरा आपको फैक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन राइट द ऑल फैक्टर्स. ओके, यू कैन ओनली सी दैट हियर 30 हैव अ factor 1 and 5 because of 30 is the divisible with 5. Okay ना, divisibility test में मालूम है 30 is divided by 5 and 115 is also factor of 5 because of the last digit of any number is 0 and 5, then all number is divided by 5 is the divisibility test for the 5. So we can say that they have not only one factor between them, they have more than one factors. So 30 and 150 is not co-prime number. Okay, A, B और C, D, E और F आपको होमवर्क में करना है. ठीक है, HW में. क्वेश्चन नंबर 5, D, E और F चेक क्या करना है आपको? चेक इस तरह से करना है. पहले इन दोनों के फैक्टर्स निकालने हैं. फैक्टर्स में अगर कोई भी नंबर कॉमन न हो 1 के अलावा, 1 तो सभी में होगा, तो 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन न मिलता हो तो उन दोनों नंबर्स को हम कोप्राइम नंबर्स कहेंगे. ठीक है, इतना आपको होमवर्क में भी करना है. सो हियर क्वेश्चन नंबर 6 इज अ नंबर इज डिवाइजेबल बाय बोथ 5 and 12. बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिवाइजेबल. मतलब कोई ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिवाइजेबल है और 12 से भी डिवाइजेबल है, तो वो नंबर दूसरा ऐसा कौन सा नंबर से डिवाइजेबल होगा ही होगा. बट पहले आप देखो 5
and 12 both are the co-prime numbers because they have excepting one, they have no any common factors, है ना. यहाँ पे बताया ऐसा गया है कि अ नंबर इज डिवाइजेबल बाय बोथ. कोई एक नंबर है जो 5 और 12 दोनों से डिवाइजेबल है ना. कोई ऐसा नंबर होगा जो 5 से भी डिवाइजेबल होगा और 12 से भी डिवाइजेबल होगा. तो पहले तो हमें वही लिखना होगा. द गिवन नंबर इज डिवाइजेबल बाय 5. द नंबर is divisible by both 5 and 12 are co-prime नंबर, है ना. इसका मतलब यहाँ पे आपको कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं मिलेगा. बाद में क्या बताया है कि अ नंबर इज डिवाइजेबल बाय बोथ 5 and 12 बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर इज ऑलवेज डिवाइजेबल. तो इसके अलावा ऐसा कौन सा नंबर होगा जो उस नंबर से डिवाइजेबल होगा. फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि भाई 120 ले लेते हैं हम. सो 120 इज ऑलवेज डिवाइजेबल बाय 5. 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 and 120 is always divisible by 12. 12 1 ज़ा 12, 10, है ना. तो ये नंबर कोई और नंबर से भी डिवाइजेबल होगा, है ना. वो कौन सा नंबर डिवाइजेबल कौन से होगा. तो कि वो नंबर 60 से भी होगा. किससे होगा. 60 से होगा क्योंकि इन दोनों का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा. 5 और 12 का कॉमन मल्टीपल क्या आएगा. 5 और 12 का कॉमन मल्टीपल 60 आता है. क्या आता है 60. सो 60 इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल. ओके. और जो पहला कॉमन मल्टीपल होगा उनसे इन दोनों से जो डिवाइजेबल होगा वो उनसे भी ऑलवेज डिवाइजेबल होगा. So the number will also be divisible by their product. So the number is also divisible by their product. Their product. Their product. Like 5 multiplied with 12 is equal to 60. The every number is divisible by 60. So the number is always divisible by 60. और ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था. ओके. राइट डाउन इन योर बुक. ओके. A number is divisible by 12. By what other number what will that number is divisible. अभी जो कोई नंबर 12 से डिवाइजेबल होगा, अगर कोई नंबर 12 से डिवाइजेबल होगा तो वो नंबर उसके फैक्टर से भी डिवाइजेबल होगा ही होगा. ओके. सो वी कैन राइट हियर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. इफ a number is divisible, if a number is divisible by 12, it will be also divisible by the factor of 12. The factor of 12. So factor of 12 is 2, 3, 4, 6. If any number is divisible by 12, then
that number is also divisible by 2, 3, 4 and 6. ओके, ख़त्म कर दीजिए यहाँ पे। मतलब कि दिस नंबर इज डिवाइजेबल, अगर आपको कंक्लूजन लिखना है तो लिख भी सकते हो कि इफ नंबर is divisible by 12, it will be also divisible by 2, 3, 4 and 6. ओके, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। थैंक यू।